these some two, three basic things, out of which the first one was dipole moment, and I was explaining the details of dipole moment, in which I have discussed about the polarity of the bond on the basis of difference in electronegativity, which is quantified as uh, dipole moment, and the dipole moment associated with the bond with a particular bond in a molecule is known as bond moment, and then sum total of all the bonds in a molecule, sum total of bond moments of all the bonds in a molecule is termed as dipole moment of the molecule. ठीक है, फिर ये दो वर्ड्स मैंने जनरली डिस्कस किए थे, एक्चुअली में एग्जिस्ट नहीं करते हैं, बट जस्ट आप लोगों को समझाने के लिए मैंने ये दो फ्रेजेस, रियल फ्रेजेस जो है वो यही है, यही यूज करते हैं हम लोग स्टैंडर्ड. ठीक है. हावेवर ये लिखने से हमारी क्लैरिटी जो है वो बेटर हो जाती है. सो ओके, so and then I was just starting to elaborate on the quantitative uh, values, or how to calculate the quantitative value of the dipole moment. So I'm going to start from there, and what are its implications is another thing which we need to understand. Okay, and then we will proceed on polarization and that polarizability. Okay, so or later we can say that. Mhm. This dipole moment or bond moment is expressed as, generally the notation for it is mu,
म्यू इज सिंपली गिवन एज q इंटू डी। ठीक है, ये वेक्टर होता है, ये वेक्टर होता है। चार्ज जो होता है वो स्केलर होता है, एंड इट इज स्केलर टाइम्स वेक्टर, स्केलर टाइम्स वेक्टर। सो म्यू का डायरेक्शन जो होगा that will be in the direction of d if charge is, ये q जो है वो पॉजिटिव ही लिया जाता है। पॉजिटिव से निगेटिव वाला जो डायरेक्शन होता है ना, जैसे ये पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, सो डायपोल मोमेंट विल बी टेकन एज दिस। सो पॉजिटिव एंड से निगेटिव एंड की तरफ इसको कंसिडर किया जाता है, और इस तरीके से डिनोट किया जाता है एरो। दिस इज रिप्रेजेंटेशन फॉर dipole moment or bond moment. Representation for dipole moment of molecule or bond moment of bond। ठीक है, चार्ज Q का ऐसा यूनिट है हमारा कूलम। Q Q के लिए वी हैव कूलम, वेयर 1 कूलम इज इक्वल टू, ऐसा यूनिट में इसका इसका होता है 10⁻⁻10 ESU। It is 3.33 to 10 to the power, एक सेकंड, 3.33 है या 3 है? ESU is equal to 3.33 into 10 to the is 3 into 10 to the power 9 ESU। ठीक है, ये ESU जो होता है ये CGS यूनिट है, CGS unit of charge। सो एंड ये है ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज। ठीक है, तो डायपोल मोमेंट का ऐसा यूनिट क्या रहेगा?
SI unit of mu is going to be Coulomb meter, right? Am I right? Or yeah, there is another unit called CGS unit. CGS unit is going to be SU dot centimeter. CGS is centimeter gram second. This is centimeter gram सर थोड़ा ऊपर कीजिए ना, मैं डिस्कनेक्ट हो गया था. second. ये 1 मिनट के लिए नोट कर लो तुम लोग. I'll be back in 2 minutes. SI unit is Coulomb meter and CGS unit is ESU centimeter. ठीक है. This is also known as DEBY. DEBY. DEBYE. ठीक है. Represented as capital D. ठीक है. तो ये इसका नोटेशन या फिर ये होता है, यूनिट होता है इन SI यूनिट, सॉरी इन CGS यूनिट. ठीक है. एंड द रिलेशनशिप इज गोइंग टू बी 1 सेंटीमीटर मीटर. 1 सेंटीमीटर मीटर जो होगा that will be equal to अच्छा सॉरी, CGS unit is रुक जाओ, एक सेकेंड. CGS unit is ESU centimeter and debye is another unit. It's not the same unit. ठीक है. Mu is also expressed in debye. ठीक है. So SI unit of mu is Coulomb meter. CGS unit is ESU centimeter, and then we have debye as a unit of mu or dipole moment. The relationship looks something like this. Yeah. 1 debye is dipole moment of charge 10 to the power minus 10 ESU separated by a distance of 1 Armstrong. ठीक है. So 1D is equal to 10 to the power minus 10 ESU Armstrong. ठीक है. इसको if we want to convert into CGS, what do we need to do? We have to convert this Armstrongs into meter,
सॉरी सेंटीमीटर, एमस्ट्रॉन्ग को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना होगा, एंड 1 एमस्ट्रॉन्ग इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर और 10⁻⁻8 सेंटीमीटर, राइट। सो एमस्ट्रॉन्ग को अगर मैं रिप्लेस करता हूं तो 10⁻⁻10 ESU multiplied by 10⁻⁻8 centimeter. This makes 10⁻⁻18 ESU centimeter, right? Is it okay? Yes, sir. Yes. अच्छा, एक चीज और, जिस छोटी सी चीज इस तरफ, ESU is also known as आई मीन ESU का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, ठीक है। एंड दिस ESU is also pronounced as, या इसको एक दूसरे नाम से भी जानते हैं, एंड द अदर नेम इज स्टैट कूलम, स्टैट कूलम, ठीक है। Maybe we can write it on the next page itself. ESU, electrostatic unit, and then you have stat C or static कूलम, ठीक है। सो अब यहाँ पर आते हैं, ESU को अगर मुझे SI में कन्वर्ट करना है तो क्या करना होगा? 1 ESU इज इक्वल टू 3.33 इंटू 10⁻⁻10 कूलम, ऐसा ही है ना? One ESU is equal to this much coulomb, right? Yes, sir. So we can put this value over here and सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 10⁻⁻18 का जो फैक्टर है वो साइड में रहेगा। ESU के लिए 1 ESU कैन बी रिटन एज 3.33 into 10⁻⁻10 कूलम into 10⁻⁻2 meter. This makes 3.33 into 10⁻⁻30 coulomb meter, right? So one debye is equal to not debye is equal to 10⁻⁻10 ESU Armstrong और 10⁻⁻18 ESU सेंटीमीटर और 3.3 into 10⁻⁻30 कूलम मीटर, ठीक है। Making sense? Yes, sir. Okay. Furthermore, ऑलरेडी लिखा चुका हूँ जस्ट दैट कि बॉन्ड मोमेंट का वेक्टर एडिशन, वो बॉन्ड मोमेंट्स ऑफ ऑल द बॉन्ड्स इन अ मॉलिक्यूल आर वेक्टोरियली एडेड in order to get the net dipole moment of the molecule. So suppose मेरे पास एक दो मॉलिक्यूल है, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन,
ठीक है। सो सबसे पहले ये कैसे डायपोल मोमेंट्स हम कैसे दिखाते हैं कि पॉजिटिव से निगेटिव एंड की तरफ वो हेड करता रहेगा, ठीक है। निगेटिव वाले के तरफ उसका रहेगा हेड और पॉजिटिव वाले के तरफ रहता है उसका टेल, ठीक है। सो दैट इज वन थिंग लाइक दिस, मेकिंग सेंस। एंड देन इन दोनों के बीच का एंगल इज समथिंग विच वी हैव टू बी केयरफुल अबाउट। ये एंगल रहेगा इन दोनों के बीच का, लेट इट बी थीटा। सो नेट डायपोल मोमेंट जो होगा, मान लो इसका बॉन्ड मोमेंट b1 है और ये भी b1 ही रहेगा, राइट। मान लो दो अलग अलग बॉन्ड होते हैं तो b1 एंड b2 रहेगा, ठीक है। सो यहाँ पर अभी के लिए मतलब इस केस में तो b1 ही रहेगा। इन केस अगर b1 b2 रहता है तो नेट डायपोल मोमेंट म्यू इज गोइंग टू बी इक्वल टू रूट अंडर b1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस 2b1 b2 cos theta, right? Vector addition, magnitude of mu will be equal to how much? This much. और theta sum total कुछ इस डायरेक्शन में आएगा, एंड वो कैसे निकालते हैं that you guys already know from the vector studies of vector, ठीक है। सो एक लगभग अंदाजा वेक्टर करने के बाद हमको ये पता रहता है कि अगर डायपोल मोमेंट ऐसे है दोनों, तो हमारा समेशन जो होगा दोनों वेक्टर का एडिशन दैट इज गोइंग टू बी इन दिस डायरेक्शन। अगर ये इस डायरेक्शन में है और दूसरे वाले का बॉन्ड मोमेंट इस डायरेक्शन में होता, तो फिर हमारा समेशन किस डायरेक्शन में होता? इट वुड हैव बीन इन दिस डायरेक्शन, राइट। मेकिंग सेंस। Yes, sir. किस डायरेक्शन में है वो हमको पता लगभग थोड़ा चल जाता है, ठीक है। और next thing is application of dipole moment. What does dipole moment or bond moment do tell to us? See, नंबर वन जो हमको सबसे पहली चीज ये बताता है, डायपोल मोमेंट जो सबसे पहला इंफॉर्मेशन हमको देता है, इट infers about polarity in polarity at bond level sorry not at bond level but at molecule level, polarity at molecule level, that is net polarity of the molecule, ठीक है। The next important information which this gives is by comparing theoretical and observed
dipole moment values by comparing theoretical and observed dipole moment values. We molecules, we tend to get percentage ionic character in a molecule. This thing we have seen a bit earlier as well. Percentage ionic character. ये समझाया था मैंने, आप लोगों को समझ में आया था पहले ना? हेलो, Yes, sir. हेलो, हाँ मैं Yes, sir. पूछ रहा हूँ, ये पहले जो बताया था आप लोगों को वो ध्यान है? हाँ सर. ठीक है. किसी तरह का डाउट, डू यू थिंक इसको फिर से एक्सप्लेन करने की जरूरत है? सी आयन के केस में देयर इज गोइंग टू बी यूनिट पॉजिटिव एंड यूनिट नेगेटिव चार्ज बीइंग सेपरेटेड बाय डिस्टेंस d. ठीक है, ये आयंस के केस में हो जाएगा. अगर आयंस नहीं है, मॉलिक्यूल है, ये दो मॉलिक्यूल एटम्स बॉन्डेड हैं, तो इसके ऊपर डेल्टा पॉजिटिव और डेल्टा नेगेटिव रहेगा पोलैरिटी. ये इस तरफ शिफ्ट किया तो अब ये डेल्टा पॉजिटिव इस यूनिट पॉजिटिव के कंपैरिजन में कितना है? 0.5 टाइम्स है, 0.7 टाइम्स है, 0.6 टाइम्स है. तो ये जितना ज्यादा रहेगा, अगर ये पूरा 1 हो गया ये, तो थ्योरेटिकल वैल्यू के बराबर हो गया, यानी 100% आयनिक हो गया. और मान लो 0.6 टाइम्स ही ये डेवलप हुआ है. एक पॉजिटिव चार्ज पे जितना चार्ज होता है उसका 0.6 टाइम्स ही डेवलप हुआ है. दैट मीन्स 60% इट इज आयनिक एंड रेस्ट इट इज कोवेलेंट. अगर 20% डेवलप हुआ है, 0.2 डेवलप हुआ है, ये 0.2 है टाइम्स, इसका मतलब है 20% आयनिक है एंड रेस्ट जो है हमारा ये है. इज इट ओके? बात समझ में आ रही है? Yes, sir. Okay. So the second application is this. Then we have the third application of it. We are going to see in latter year. I'll give you some examples also. It helps us in predicting shape of the molecule. ठीक है. Furthermore, predicting shape of the molecule or shape, हाँ ठीक है, shape of the molecule. फॉर एग्जाम्पल लाइक ऐसे H2O अगर देखते हैं हम, तो ये कैसा होना चाहिए? मतलब दो हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़े हुए हैं,
वी कैन इजीली से कि ऑक्सीजन कुछ इस तरह से होना चाहिए और ये दोनों हाइड्रोजन इसके साथ स्ट्रेट लाइन में होते. दैट इज व्हाट आवर नॉर्मल प्रेडिक्शन विल टेल, राइट ना. दो चीजों को किसी एक चीज के साथ जुड़ना है तो सिमेट्री वगैरह से जो सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर हमको ध्यान में आता है वो इस तरह का आता है जैसा CO2 है, राइट. बट CO2 के लिए ये अजम्पशन सही है, H2O के लिए ये अजम्पशन गलत है, एंड इट वाज प्रूवन रॉन्ग and discussed with the help of, or you can say it was mm, explained with the help of H2O. Sorry, shape of the H2O, that sorry, the dipole moment of the H2O which is not equal to zero. अगर zero इसका dipole moment होता entire molecule का तो it would have been a straight molecule. ठीक है, a straight molecule, whereas mu is not equal to zero. इसकी वजह से that actually helps us in predicting that ये बॉन्ड मोमेंट जो है ये इस बॉन्ड मोमेंट को एग्जैक्टली कैंसिल नहीं कर पाता है. दैट मीन्स ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में नहीं है. यहाँ पर क्या है, दिस बॉन्ड मोमेंट इज गोइंग टू एग्जैक्टली कैंसिल दिस बॉन्ड मोमेंट. ठीक है, इसलिए म्यू क्या हो गया, जीरो हो गया. ठीक है ना. So helps in predicting shape of the molecule like H2O with mu not equal to zero is bent in shape, whereas CO2 with whereas CO2 with mu is equal to zero is mu is equal to zero is, whereas CO2 with mu is equal to zero is a linear molecule. Is it okay? Uh, there are other applications also, like अभी थोड़े टाइम बाद जा करके we will be studying something like primarily organic chemistry में we will be studying या organic chemistry में या even ये coordination compounds inorganic का last chapter जो होगा उसके अंदर में geometrical isomerism, cis trans, geometrical isomerism, और इसके अंदर में हम लोग पढ़ेंगे देयर इज समथिंग कॉल्ड सिस एंड ट्रांस. ये कभी सुना है हम लोगों ने अभी के पहले? बेसिकली ये एक मॉलिक्यूल है, मान लो ठीक है. व्हाट इज नेम ऑफ दिस मॉलिक्यूल? 2-butene, right? Now 2-butene can have two different forms. One form of 2-butene is can look something like this. दूसरा कैसा दिख सकता है? बात समझ में आ रही है? देख ये this one is known as cis
2-butene, and this is known as trans 2-butene. Is it okay? सेम टाइप के ग्रुप्स जब ऑपोजिट डायरेक्शन में ओरिएंटेड हो, ठीक है, ऑन टू डिफरेंट कार्बन्स, तो दैट इज नोन एज ट्रांस. When same type of atoms or groups are attached on same side of two different carbons, they are known as cis. ठीक है. Is it okay? This is going to be what? Cis or trans? It will Trans. be trans, and this is going to be cis. Cis and trans, or this form of geometrical isomerism, is associated only with the alkene type of unsaturated hydrocarbons. I mean, it's not only, but it is associated with it. There are other compounds also जिसके साथ ये associate हो सकता है, जैसे nitrogen double bonded with nitrogen and having a hydrogen over here and hydrogen over here. यहाँ पर इसका लोन पेयर और यहाँ पर इसका लोन पेयर रहता है. दिस इज ट्रांस, ठीक है. एंड इसका सिस फॉर्म जो होगा एन डबल बॉन्ड एन, लोन पेयर लोन पेयर लोन पेयर लोन पेयर, एच एंड एच. दिस इज सिस. लेस स्टेबल, दिस इज मोर स्टेबल. ठीक है. सो कोई भी मॉलिक्यूल सिस फॉर्म में है या ट्रांस फॉर्म में है, ठीक है ना, ये भी हमको डायपोल मोमेंट से पता चलता है मेनी अ टाइम्स. कैसे पता चलता है? सिंपल सी चीज है. यहाँ पर जो डायपोल मोमेंट है, ठीक है, इस डायरेक्शन में होगा. ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है. मेकिंग सेंस? यहाँ पर ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, सॉरी कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये ज्यादा है, तो यहाँ पर भी इस डायरेक्शन में रहेगा, राइट. छोटा इसलिए बनाया क्योंकि इसका पोलैरिटी कम होगा, इसका पोलैरिटी ज्यादा होगा, इसलिए बड़ा वाला लाइन बनाया. ठीक है ना. अब Yes, अगर आप लोग थोड़ा सा ध्यान से सोचें, तो ये वाला एग्जैक्टली इस वाले को कैंसिल करेगा डायरेक्टली, अपो सॉरी एक दूसरे के एग्जैक्टली अपोजिट हैं, और ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर सकते हैं. ठीक है ना. तो इस वाले ट्रांस मॉलिक्यूल का म्यू का वैल्यू क्या होगा? 0. इसके वाले के म्यू का वैल्यू क्या होगा? नॉट 0. सो जनरली ट्रांस वाले के म्यू का वैल्यू छोटा होता है और सिस वाले के म्यू का वैल्यू, डायपोल मोमेंट, बड़ा होता है. अब हर बार 0 होगा और नॉन 0 होगा ऐसा नहीं है, बट ये 0 नहीं भी हुआ, मान लो यहाँ पर क्लोरीन के बदले फ्लोरीन लिख दिया हमने, तो वैल्यू 0 तो नहीं रहेगा, लेकिन इस वाले केस में इट इज गोइंग टू बी लेसर. इस वाले केस में इट इज गोइंग टू बी मोर हायर. मेकिंग सेंस? So we can say that under fourth point, yeah, uh, dipole moment of a molecule helps in
deciding cis or trans form of geometrical isomer of मॉलिक्यूल। ठीक है, अच्छा ये अल्कीन्स क्या होते हैं पता है आप लोगों को ना? कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? थोड़ा सा आइडिया है ना 10th वगैरह में? हाँ सर। ठीक है, Yes, sir. फाइन। और बेंजीन पता है हम लोगों को? यस सर। Yes, sir. वेरी गुड। सो बेंजीन कैसा होता है? साइक्लिक स्ट्रक्चर। साइक्लिक Cyclic स्ट्रक्चर। structure. ठीक है, और इसको इस तरीके से डिनोट करते हैं हम लोग, या तो ऐसे करते हैं या फिर मे बी बचपन में आप लोग को यानी 10th लेवल में आप लोग को इस तरह से लिखने सिखाया गया होगा। एक डबल बॉन्ड, दूसरा डबल बॉन्ड, तीसरा डबल बॉन्ड एंड इंटर कन्वर्टेड टू दिस। एम आई राइट? कौन सा बताया गया था? ये वाला बताया गया था या सिर्फ ये वाला बताया गया था, या इस तरीके से लिखना बताया गया था? बताया गया था क्या कुछ? हाँ सर, वो सेकंड टाइप। आ, ये दोनों लिख के बताया गया था कि इसमें से कोई एक ही सर, सिर्फ एक एक, ही। सिर्फ एक ही? ओके, Sir, एक ही था सेकेंड वाला. ये वाला। अच्छा, मतलब सेकंड वाला इज एक्चुअली हाँ सर, इसमें दीज से कोई टू भी। थिंग्स टुगेदर इज सेकंड वाला। अदरवाइज जनरली हम लोग शुरू में ये बच्चों को बताते हैं। ठीक है, दिस इज व्हाट is known as benzene for us when we study it for the first time. Fine. ठीक है, ये एक्चुअली ऐसे नहीं रहता है, ये कुछ इस तरीके से इंटर कन्वर्ट होता है। मतलब यहाँ से ये डबल बॉन्ड घूम करके यहाँ आता है, ये वाला यहाँ आता है, और ये वाला वो यहाँ जाता है। इस स्ट्रक्चर से ये इस स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होते रहता है, और इन दोनों का मिक्स जो होता है दैट इज, ये दोनों को मिला करके ये वाला स्ट्रक्चर बनता है, एंड दिस इज द फाइनल स्ट्रक्चर या एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। अच्छा, ये सर्कल जो होता है ये हमारी चॉइस के ऊपर है। वी मे राइट इट एज सर्कल लाइक दिस, और मे चूज टू लाइक इट राइट इट एज अ सर्कल लाइक दिस। I'll explain you the reason, not now, later on this chapter why we write it like this. Now, benzene के ऊपर we can put some groups, and they can be placed something like this, ठीक है, or maybe like this, or even maybe like this, ठीक है। तीन तरीके से रख सकते हैं इसके ऊपर ना। देखिए, एक के अपोजिट अगर दूसरा वाला है, दिस इज कॉल्ड पैरा कंपाउंड। पैरा मतलब, अच्छा देखो, ये है पहला अटैचिंग ग्रुप, इससे एक दो तीन चार, चौथे वाले कार्बन पे अगर कोई दूसरी चीज जुड़ी है डायगनली अपोजिट, ठीक है, तो वी कॉल इट पैरा कंपाउंड या पैरा आइसोमर, पैरा कंपाउंड। ठीक है, और दिस पोजीशन इज कॉल्ड मेटा। ये वाला क्या है? पैरा, ये वाला है मेटा, एंड ये वाला पॉइंट जो होता है जस्ट एडजेसेंट वाला, दैट इज
पॉइंट नहीं है, कार्बन है। जिस कार्बन से ये पहला ग्रुप अटैच है उसके जस्ट इमीडिएट लेफ्ट या राइट दोनों में से कहीं पर भी आएगा, इट इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज ऑर्थो। ठीक है, तो इसका नाम क्या हम लोग रखेंगे, लिखेंगे पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। ठीक है, दिस इज मेटा डाइक्लोरोबेंजीन एंड दिस इज ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन। ठीक है, वैसे दूसरे नाम भी हो सकते हैं, क्लोरो और सॉरी पैरा क्लोरो, पी क्लोरो क्लोरोबेंजीन, पी पर क्लोरो क्लोरोबेंजीन भी इसका नाम हो सकता है, एम क्लोरो क्लोरोबेंजीन, दिस थिंग इज कॉल्ड एज क्लोरोबेंजीन। बट आई वुड प्रेफर, खैर वो नोमेनक्लेचर में हम लोग देखेंगे क्या क्या इसका नाम हम लिख सकते हैं बाद में। अभी के लिए ये है कि दिस इज गोइंग टू बी और दिस इज गोइंग टू बी रेफर्ड एज और रिटन एज लाइक दिस, स्मॉल पी हाइफन, जो भी नाम है इसका XYZ। ठीक है, लगभग इसका भी वही नाम होगा IUPAC में, और या थोड़ा डिफरेंट हो सकता है, बट लाइक डाइक्लोरो के फॉर्म में अगर ये तीनों को लिखते हैं तो इन तीनों को डिफरेंशिएट करने के लिए इसको P लिखेंगे, इसको M हाइफन सेम नेम एंड यहाँ पर O हाइफन सेम नेम। बात समझ में आ रही है? डाइक्लोरोबेंजीन जैसे लिखा हमने तो P डाइक्लोरोबेंजीन, M डाइक्लोरोबेंजीन, O डाइक्लोरोबेंजीन। क्लियर है? और यहाँ पर ये देखो, मान लो इधर Cl रखा हमने, इधर NO2 रखा, Cl रखा और NO2 रखा, सॉरी Cl रखा एंड NO2 रखा। ओके, सो एक मिनट, क्लोरो नाइट्रोबेंजीन या फिर P पर नाइट्रो क्लोरोबेंजीन, M पर नाइट्रो क्लोरोबेंजीन एंड O पर नाइट्रो क्लोरोबेंजीन। P नाइट्रो क्लोरोबेंजीन, ठीक है, ये M नाइट्रो क्लोरोबेंजीन एंड ये O नाइट्रो क्लोरोबेंजीन। बात समझ में आ रही है? अब जब ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, अच्छा इसमें, इस वाले स्ट्रक्चर में एवरीथिंग इज सिमेट्रिक। ठीक है, ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर जो होता है कंप्लीटली सिमेट्रिक होता है। क्या होता है? कंप्लीटली सिमेट्रिक स्ट्रक्चर। ठीक है, तो व्हाट कैन वी एक्सपेक्ट आउट ऑफ इट? म्यू इसका क्या होगा? 0। कंप्लीटली सिमेट्रिक है तो म्यू 0 होगा। इस वाले केस में अगेन म्यू जो होगा that is going to be 0. Mu will be equal to 0 because it is again symmetric. इसके लिए mu will not be equal to 0. Mu will not be equal to 0. इसके लिए mu की वैल्यू थोड़ी कम होगी, इसके लिए mu की वैल्यू ज्यादा रहेगी। बात समझ में आ रही है? हेलो, Yes, sir. यस सर। एंड ये हम इस तरीके से समझ सकते हैं, यहाँ पर Yes, sir. डाइपोल मोमेंट विल बी इन दिस डायरेक्शन, डाइपोल मोमेंट इन दिस डायरेक्शन। एंगल जितना बढ़ेगा, कॉस थीटा का वैल्यू जितना बढ़ेगा, हमारा नेट डाइपोल मोमेंट की वैल्यू कम होगी। यहाँ पर थीटा की वैल्यू कम है तो डाइपोल मोमेंट की वैल्यू ज्यादा होगी, म्यू नेट जो होगा, राइट ना? कोई इशू नहीं है। सिमिलरली अब यहाँ पर तो 0 हो गया, लेकिन इस वाले केस में म्यू विल नॉट बी इक्वल टू 0, म्यू नेट विल नॉट बी इक्वल टू 0,
क्योंकि इसका डायपोल मोमेंट का वैल्यू अलग होगा और इसका मतलब वो बॉन्ड मोमेंट इसका अलग होगा, इसका अलग होगा, लेकिन म्यू नेट विल बी स्मॉलेस्ट फॉर दिस, दैट इज फॉर श्योर, राइट? म्यू नेट स्मॉलेस्ट कंपेयर टू एनी अदर, मेटा या ऑर्थो के कंपैरिजन में पैरा का म्यू नेट इज ऑलवेज स्मॉलेस्ट, ठीक है? सो बेंजीन, सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन रिंग वो किस ओरिएंटेशन में है, वेदर इट इज पैरा ओरिएंटेड, मेटा ओरिएंटेड, या फिर वी कैन से डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन रिंग मेटा ओरिएंटेड है, पैरा ओरिएंटेड है, ये सारी चीजें भी हमको डायपोल मोमेंट जो है दैट इज एबल टू डिलीवर अस और इट इज एबल टू टेल अस। एक्चुअली ना ये पॉइंट नंबर 4 एंड पॉइंट नंबर 5 को ना we can take it as sub point of point number 4, predicting shape of the molecule का sub point लिख लेते हैं rather than independent points, ठीक है? क्योंकि यहाँ पर भी ये शेप ही बता रहा है किस तरह का शेप है। हमें मेकिंग सेंस? और एक सेकेंड रुक जाओ, मैं आकर the observed value of mu helps in deciding ortho meta and para isomers of benzene, ठीक है? So these are some of the applications of dipole moment. We will see or discuss this once more. Discuss it नहीं, basically polarity in covalent bonds के टाइम पर इसको यूज करेंगे एंड इसके बेसिस पर कुछ और चीजें देखेंगे कि व्हाट इंफॉर्मेशंस इट कैन गिव टू अस, ठीक है? द नेक्स्ट प्रॉपर्टी व्हिच आई वांटेड टू डिस्कस वाज और डिस्कस इन brief was polarization and polarizability. सर वो बेंजीन के लिए ही रहेगा क्या और भी कोई कंपाउंड है? बेंजीन टाइप के कंपाउंड्स के लिए, इट्स नॉट ओनली फॉर बेंजीन, इट इज फॉर बेंजीन टाइप कंपाउंड्स, ठीक है? अब बेंजीन के बदले ये इस पर भी पैराडीन पे भी रहेगा और भी कई एक सारे पे रह सकता है, ठीक है? बेंजीन के लिए जस्ट एज एग्जांपल हम बोलते हैं ओके सर, मींस सर साइक्लिक होना चाहिए सर। साइक्लिक इज एन इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर। और दूसरी चीज ये भी है, जैसे अगर सारे एटम सेम नहीं रहेंगे, जैसे यहाँ पर कार्बन एंड हाइड्रोजन ही है, ठीक है? मान लो यहाँ पर एक कार्बन को नाइट्रोजन से हट रिप्लेस कर दिया हमने, ठीक है? तो ये पूरा का पूरा बाकी सारी चीजें एज इट इज रहने के बाद भी ये इंटायर मॉलिक्यूल विल नॉट रिमेन सिमेट्रिक, ठीक है? और उस केस में डायपोल मोमेंट अनसब्स्टिट्यूटेड मॉलिक्यूल का भी जीरो नहीं रहेगा, ठीक है? ऐसे सिनेरियो में सब्स्टिट्यूटेड मॉलिक्यूल्स का भी जीरो होना थोड़ा मुश्किल है, हो सकता है लेकिन मुश्किल है। बात समझ में आ रही है? जैसे यहाँ पर कार्बन के बदले नाइट्रोजन हमने डाल दिया, सपोज ये दिस मॉलिक्यूल इज नोन एज pyridine, ठीक है? pyridine। अब इसका डायपोल मोमेंट क्या होगा? दिस इज ऑब्वियसली गोइंग टू बी ओरिएंटेड समथिंग लाइक दिस, मेकिंग सेंस? एंड इट विल श्योरली नॉट बी इक्वल टू 0। अब इस पे अगर मैं इधर क्लोरीन
ऐड करता हूं, सपोज इनिशियल डायपोल मोमेंट इसका ये था, इसका डायपोल मोमेंट इस तरफ, अभी ये म्यू की वैल्यू कम हो जाएगी, ठीक है ना। डबल जैसे ही डाला, फिर से एक क्लोरीन डाला मैंने, ठीक है, तो म्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, ऑर्थो पोजीशन पर डाला तो, मेटा पर डालेंगे तो थोड़ा कम बढ़ेगा, सॉरी यहां पर डाला क्लोरीन तो कम हो जाएगा सबसे, यहां पर थोड़ा बढ़ेगा, यहां पर फिर से डालेंगे तो थोड़ा कम बढ़ेगा, यहां पर सबसे ज्यादा बढ़ेगा, यहां पर थोड़ा कम बढ़ेगा। और नाइट्रोजन के ऊपर क्लोरीन कभी अटैच होगा नहीं इन जनरल, ठीक है। सो यहां पर भी कुछ इंफॉर्मेशन किया, बट उसके कुछ इंफॉर्मेशन डेफिनेटली दिया, बट एग्जैक्टली यही वाला रूल फॉलो होगा कि म्यू सबसे छोटा होगा पैरा पे, मेटा पे उसके बाद, और ऑर्थो पे सबसे कम, या ऑर्थो पे सबसे ज्यादा, मेटा पे इन बिटवीन, पैरा पे सबसे कम। दैट मे नॉट होल्ड फॉर ऑल साइक्लिक्स, ठीक है, इट विल ओनली होल्ड ट्रू फॉर symmetric cyclic molecules. Making sense? Symmetric cyclic molecules. और ये बेंजीन के अलावा और भी ऐसे साइक्लिक मॉलिक्यूल रहेंगे, देयर इज समथिंग कॉल्ड हेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन, ठीक है, उसका फॉर्म इस तरह का हो जाता है, ये भी है 6 कार्बन, बट ये डबल बॉन्ड नहीं रहता है, दो दो हाइड्रोजन्स रहते हैं दोनों जगह पे, हर जगह पे, ठीक है। तो इसका स्टेबल फॉर्म जो होता है वो इस तरह का होता है। अब इसमें अगर कोई भी सब्स्टिट्यूशन हमने कर दिया, एक यहाँ पे कर लिया और दूसरा यहाँ पे कर लिया मान लो, तो वो भी अलग अलग पोजीशंस में आ सकते हैं। इस पोजीशन में किस बॉन्ड को हमने रिप्लेस किया, तो ये अल्टरनेट वाले पे है, तो ये एक ऊपर हमने किया और एक साइड में कर दिया इंस्टेड ऑफ नीचे वाले को करने के, तो डायपोल मोमेंट हमारा बन जाएगा, लेकिन नहीं, नीचे वाले बॉन्ड को रिप्लेस किया Cl से, तो ये दोनों एक दूसरे को काउंटर कर लेंगे। सो मतलब मैं बस ये बता रहा हूँ कि ये ऑब्जर्व्ड वैल्यूज जो हैं वो बेंजीन के ऑर्थो पैरा में कर रहे हैं, वैसे ही और जगह पे स्टेट्स को डिटरमाइन करने में हमारे हेल्प करेंगे, और एग्जैक्टली इसी तरीके से करेंगे कि पैरा वाले पे सबसे कम, ऑर्थो वाले पे सबसे ज्यादा, मेटा वाले पे इन बिटवीन, विल डिपेंड फ्रॉम केस टू केस। दिस इज नॉट द थंब रूल, ठीक है, दिस इज नॉट द थंब रूल कि ऑर्थो पैरा सबसे कम होगा, और ये इट विल डिपेंड अपॉन ग्रुप्स आल्सो, बट इन जनरल ऐसा होता है कि पैरा का जनरली सबसे कम रहता है, मेटा एंड ऑर्थो वाले में देयर कैन बी अ स्विच, ठीक है, मेटा एंड पैरा ऑर्थो वाले में देयर कैन बी अ स्विच। ना ये पैरा जो होता है वो जनरली कम ही रहता है, बट with your understanding of more and more molecule, these views will become more form. अभी कोई नोशन बना के रखना इज बैड, यहां पर सिर्फ आपको इस बात के ऊपर ध्यान दिलाया जा रहा है कि म्यू कैन हेल्प इन डिसाइडिंग द स्ट्रक्चर, म्यू हेल्प्स इन डिसाइडिंग व्हाट स्ट्रक्चर। इज इट ओके? कौन सा ज्यादा कौन सा कम, ये जस्ट एग्जांपल के लिए मैंने लिया है। इज इट ओके टू एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. The second thing which I wanted to discuss was definitely the polarization and polarizability.
देखो ZING भी होता है, SING भी होता है, you can use it the way you want to। तो ऐसा नहीं है S ही यहाँ पर होता है, Z भी लिख सकते हैं। Okay. पोलराइजेशन क्या होता है ये हम लोग को थोड़ा सा समझ में आ गया है, थोड़ा सा। डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन जो हुआ था डायपोल मोमेंट के टाइम पर, दैट वाज क्रिएटिंग व्हाट, पोलराइजेशन। पोलर नेचर इंट्रोड्यूस किया था, रिमेम्बर। नाउ हियर वी आर एक्चुअली गोइंग टू लुक एट व्हाट इज पोलराइजेशन। ठीक है, एक्चुअल पोलराइजेशन मतलब पोलराइजेशन इन डिटेल इज व्हाट वी आर गोइंग टू लुक एट। सो पोलराइजेशन का मतलब क्या होता है? पोलराइजेशन का मतलब होता है displacement of charge density from their normal spread। अब ये चार्ज को चार्ज डेंसिटी हम लोग बोल रहे हैं, क्यों? अब ये चार्ज डेंसिटी पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। जनरली हम लोग एटम्स वगैरह के बारे में बात करते हैं। दिस चार्ज डेंसिटी इज इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी। इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी, ठीक है। कॉन्सेप्ट कहाँ से बिल्ड हुआ है? इलेक्ट्रॉन्स जो हैं दे एग्जिस्ट एज वेव फंक्शन और एग्जिस्ट एज वेव्स inside the atom, right, rather than particles। Therefore electron charge density becomes better tool to rather than particles। The electron charge density becomes better tool to to explain shifting of charge density or distortion of charge density towards one nucleus। ठीक है, ये how it happens is, suppose I have this, So what is meant by distortion? distortion मतलब disfiguring। और देखिए ये सर्कुलर है, ठीक है,
तो ऊपर से दबा देंगे, नीचे से दबा देंगे, तो क्या बन जाएगा? समथिंग लाइक दिस, एलिप्टिकल। रुक जाओ। राइट ना? सर्कुलर से क्या बन Yes, sir. जाएगा? एलिप्टिकल बन जाएगा। अरे यार। ठीक है, मेकिंग सेंस? Yes, sir. तीसरा वाला, दिस इज फोर्स एंड दिस इज फोर्स, दोनों तरफ से कंप्रेस किया हमने, तो ये क्या हो गया? एलिप्टिकल हो गया। नाउ दिस इज डिस्टॉर्शन। डिस्टॉर्शन इन स्टेट। क्लियर? सो अब हाँ, मैं एक्सप्लेन कर रहा था, एक एटम है मेरे पास जिसके ये न्यूक्लियस है उस एटम का, दिस ब्लैक स्पॉट इज न्यूक्लियस ऑफ दैट एटम, एंड बाकी जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस तरह से इसको सराउंड किए हुए हैं न्यूक्लियस को, दे आर हैप्पीली लिविंग हियर, एंड ऑब्वियसली देयर इज गोइंग टू बी अनदर एटम, वो कुछ मे बी इस तरह का है, slightly smaller than this, maybe much smaller than this, just as big as this. Okay, now what will happen the moment it starts coming towards it? ठीक है, not only coming towards it, ये मतलब बेसिकली ऑलरेडी बॉन्डेड है, ये भी हम लोग अज्यूम कर लेते हैं, तो चीजें हमारे लिए थोड़ी आसान हो जाएंगी। Not just when they are coming together, it is that they are already bonded. ठीक है, so अभी इसका साइज छोटा है। अब ये क्या करता है, देयर इज नेचुरल टेंडेंसी, व्हाई दैट नेचुरल टेंडेंसी हैपेंस विल बी एक्सप्लेन लेटर ऑन। अभी होता क्या है वो हम लोग समझते हैं। सो ये क्या करेगा, इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपने इन्फ्लुएंस में डिस्टॉर्ट करता है। ठीक है, अब ये पहला वाला, ये जो एटम जिसको हम कंसिडर कर रहे हैं, this atom may be neutral, may be positively charged or negatively charged. Generally ये जब positively charged होता है, this atom is someone who is positively charged। ठीक है, तो इसकी टेंडेंसी क्या होगी, ये अनायन के शेप को डिस्टॉर्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिस्टॉर्ट करेगा। कैसे डिस्टॉर्ट करेगा? पॉजिटिवली चार्ज्ड है तो ये इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो कैसा हो जाएगा, इट विल बिकम समथिंग लाइक दिस। देख रहे हैं हम, द एंटायर थिंग कैन बिकम समथिंग लाइक दिस। पहले ये एग्जैक्टली गोल था, और यहाँ से इसका रेडियस इतना था, अभी इसका रेडियस रहेगा, थोड़ा सा कम होगा इसके कंपैरिजन में, इस साइड वाला, और सॉरी
ये बात समझ में आ रही है? इंस्टेड ऑफ बीइंग एग्जैक्टली सर्कुलर, ये हुआ क्या, सम ऑफ द चार्ज फ्रॉम दिस बल्क, जो जैसे ऊपर है ये नीचे वाला है, जो स्प्रेड आउट किया हुआ है, ये एक्चुअली स्लोली स्लोली करके इस स्पेस को फिल करने के लिए आगे आ जाते हैं। ठीक है, तो नेट लेवल पर कैसा दिखना चालू होगा हमको आफ्टर पोलराइजेशन? it will start looking something like this. Sorry, ये बाकी सब चीजें ऐसी रहेंगी, ये इधर थोड़ा स्प्रेड हो जाएगा। ठीक है, और ऊपर वाला पोर्शन जो होगा, मतलब ये वाला तो कॉम्प्रेस होकर के ही इधर आया ना, so this is one form of distortion. We can have another, I can represent it in another way also, a more distorted way. ठीक है, uh, it can be as distorted as this. ठीक है, बात समझ में आ रही है हम लोगों को? Yes, sir. ओके, सो नाउ आई बिलीव डिस्टॉर्शन क्या है, डिस्टॉर्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड क्या है, या चार्ज डेंसिटी क्या है, दैट इज क्लियर टू अस। ठीक है, दिस डिस्टॉर्शन, इसी चीज को जब हम लोग लाइक पहले जब मैं बता रहा था पोलर नेचर, तो हमेशा मैं इस तरीके से डिनोट किया करता था, पॉजिटिव है नेगेटिव है, चार्ज जो है वो किस तरफ आ गया, निगेटिव वाले की तरफ थोड़ा मूव कर गया, यहाँ पर था दोनों। तो दिस वाज एक्चुअली बोर्स मॉडल के हिसाब से ये बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर बीच में है, एंड दे शिफ्टेड टुवर्ड्स वन ऑफ द सेंटर, इसकी तरफ थोड़ा सेंटर शिफ्ट कर गए, तो ये डेल्टा नेगेटिव हो गया डेल्टा। रियलिटी में क्या होता है, डिस्टॉर्शन इस तरीके से होता है, ये जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है, यहाँ पर ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो ऐसे डॉट्स के फॉर्म में नहीं रहते हैं, पार्टिकल के फॉर्म में नहीं रहते हैं, दे आर एक्चुअली they remain as charge density, not as particle charge. Making sense? Yes, sir. Okay. So और उनका डिस्टॉर्शन कुछ इसी तरीके से होता है, this was actually anion, so anion was getting distorted and cation was doing the distortion. So agent is, the causing agent is cation, and the respondent is anion. Anion responds to the पोलराइजिंग पावर ऑफ द कटायन। ठीक है ना, अब यहां पर इसी से दोनों बाकी जो चीजें हैं, पोलराइजेबिलिटी एंड पोलराइजिंग पावर। ठीक है, कटायन जो है, जो अनायन के इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिस्टॉर्ट कर रहा है, द कैपेबिलिटी ऑफ कटायन टू डिस्टॉर्ट द इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ या इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी ऑफ anion is known as its polarizing power. ठीक है, so how are we going to define it? Polarizing power, या फिर we can take some points. The cation
may be able to distort electron charge density of anion when both of them are in vicinity. ठीक है, both of them are in vicinity. Cation may be able to distort the electron cloud of anion. और ऐसा क्यों करेगा डिस्टॉर्ट? Obviously, this cation will be able to distort the electron cloud of anion because of its strong pull, right? Strong pull of the nucleus of the cation. Now, nucleus का strong pull कब ज्यादा ये होएगा, विजिबल होएगा, जब Q by R, चार्ज बाय साइज रेशियो जो है कटायन का, वो क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा. Am I making sense? तभी वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी या नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ, डेंसिटी को ज्यादा अपनी तरफ पुल कर पाएगा ना. हेलो. Yes, sir. ओके. Yes, sir. Ability of time to distort charge density of anion is known as polarizing power of cation. Yeah. It is dependent on polarizing power is directly proportional to charge on cation, and it is going to be inversely proportional to R, that is size of cation. ठीक है. Larger the size, lower will be the polarizing power. Smaller the size, higher will be the polarizing power, right? So what will be the order of polarizing power for lithium, sodium, potassium, rubidium and cesium plus? We सर can, लिथियम सबसे बड़ा. lithium ka polarizing power will be the highest. Why? Because the charge on all the ions are equal, whereas size is decreasing from cesium to lithium, or it is increasing from lithium to cesium. Therefore, Q by R ratio will be highest for lithium. ठीक है. Increasing polarizing power. Okay.
यस सर। ठीक है। नहीं, ये एक्चुअली ग्रुप का था। पीरियड में जैसे अगेन हमारे पास है लिथियम प्लस बेरिलियम 2 प्लस एल्यूमिनियम 3 प्लस। What will be the order of polarizing power in this? It is going to increase like this. Increasing polarizing power in a period. But will it increase always? No. आगे चल के ये डिक्रीज भी होने लग सकता है अगर कटायन फॉर्म ही नहीं होगा। तो जहां तक कटायन फॉर्म होते रहेगा वहां तक लगभग इंक्रीज ही करते रहेगा, क्योंकि डी ब्लॉक वाले में भी अगर हम आते हैं तो साइज हमारा जनरली बढ़ता ही रहता है, सॉरी घटता रहता है, साइज जनरली घटता रहता है। तो मान लो सेम चार्ज भी अगर वो क्रिएट कर पा रहा है तो भी हमारा साइज कम होने की वजह से द पोलराइजिंग पावर विल बी ऑफ ग्रेटर वैल्यू, राइट ना। ठीक है, लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट थिंग। हेलो सर। हाँ बोलो ना। सर अभी का लेक्चर कब तक होगा? अभी 9:30 से आपका डाउट लेक्चर भी है ना? हाँ, मैं अभी वाला जस्ट खत्म करता हूँ इसको पढ़ा करके। पोलराइजेबिलिटी जो है वो मैं सिर्फ एक्सप्लेन कर देता हूँ, तो देन वी विल कंक्लूड दिस लेक्चर। सी, कटायन जो अनायन को पोलराइज कर पा रहा है उसके स्ट्रेंथ को हमने पोलराइजिंग पावर के टर्म्स में एक्सप्लेन किया। और अनायन जो कि डिस्टॉर्ट हो पा रहा है, जिसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिस्टॉर्ट हो पा रही है, उसकी एबिलिटी टू गेटिंग डिस्टॉर्ट इज एक्सप्लेन्ड इन टर्म्स ऑफ पोलराइजेबिलिटी। तो पोलराइजेबिलिटी क्या होती है? द एबिलिटी of anion to get its electron charge density distorted under influence of a cation is known as polarizability। ठीक है। अब ऑब्वियसली हम यहाँ पर भी यही होगा कि अगर हमारे पास चार्ज बड़ा है, मतलब चार्ज ज्यादा है, ठीक है, और इट्स लाइक अगर हमारा साइज बड़ा है, देखो निगेटिव चार्ज वाले के साथ में भी ये है कि
अगर स्प्रेड हमारा बड़ा है, ठीक है, इफ द स्प्रेड इज लार्ज एंड द अमाउंट इज स्मॉल, यानी चार्ज डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी डेंसिटी ये अगर कम रहती है तो पोलराइजेबिलिटी जो होगी वो हमारी ज्यादा रहेगी, यानी चार्ज स्प्रेड ज्यादा दूर में है, इसके ऊपर होल्ड न्यूक्लियस का कम है। चार्ज डेंसिटी कम होने का मतलब क्या है? चार्ज इज स्प्रेड एंड दैट मीन्स होल्ड ऑफ द न्यूक्लियस इज स्मॉल, राइट। अगर ये कंडीशन है तो the polarizability will be more, so polarizability is going to be directly proportional to size of anion, ठीक है। larger the size, larger will be the polarizability. Am I making sense? और चार्ज के ऊपर कैसे डिपेंड करेगा? इट विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू चार्ज, राइट ना, क्योंकि चार्ज बढ़ेगा तो चार्ज डेंसिटी क्या होगा? ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। सेम साइज पर अगर चार्ज बढ़ रहा है तो चार्ज डेंसिटी विल इंक्रीज। अच्छा एक सेकंड रुक जाओ। Polarizability is ठीक है। Polarizability is directly proportional to size of an ion and is inversely proportional to Q. Actually not exactly inversely proportional to Q, it is also directly proportional to Q as well. जैसे एक निगेटिव चार्ज है और साइज हमारा बड़ा है और उसके कंपैरिजन में दो निगेटिव चार्ज आ गया और साइज अभी भी हमारा बड़ा ही है, यानी होल्ड ऑफ न्यूक्लियस जो है, अगर साइज बड़ा है इसका मतलब होल्ड ऑफ न्यूक्लियस ऑन आउटर इलेक्ट्रॉन्स आर गोइंग टू बी लेसर। तो ऐसे में अगर दो इलेक्ट्रॉन आ गया तो स्प्रेड ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा, स्प्रेड इज गोइंग टू इंक्रीज फर्दर, यानी size of anion will increase further and this will lead to increase in polarizability, ठीक है। so निगेटिव मतलब चार्जेस कितने हैं इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए फैक्टर जो होता है वो साइज ऑफ अनायन होता है। लार्जर द साइज ऑफ अनायन लार्जर विल बी द पोलराइजेबिलिटी। और क्यू अगर बढ़ता है, यहाँ पर हम लोग ये नोट कर सकते हैं, इफ क्यू ऑन अनायन is larger, then size will increase further, helping in easier polarizability, ठीक है। So Yes, yes. this is the key rule and we'll stop over here. कल के दिन में we will be starting with the types of bonds, ठीक है। ये कैरेक्टर्स का यूज हमको कहाँ पे होगा? दैट आई मीन ऑब्वियसली कोवेलेंट से एनी कैरेक्टर का जो शिफ्ट होता है ना उसको पढ़ने के लिए इन तीनों की यूज होती है।
ठीक है, वहां पर बताने के बजाय मैंने यहीं पे बता दिया, सो दैट आई कैन कीप ऑन यूटिलाइजिंग इट। आयनिक में चाहिए होगा तो आयनिक में, और कोवैलेंट में चाहिए होगा तो कोवैलेंट में, दोनों जगह पे मैं यूज कर सकता हूँ इसको। ठीक है, अदरवाइज होता है क्या है, आयनिक में कहीं पर यूज करना रहा, पहले नहीं बताया रहा हो तो वहां बताओ। कोवैलेंट के लिए एक्चुअली कोवैलेंट के बाद इनको बताना होता है, बट आयनिक में भी कहीं कहीं पर आखिरी के एग्जांपल्स वगैरह एक्सप्लेन करने में इनकी यूज होने लगती है। तो मेल्टिंग पॉइंट वगैरह अगर या लैटिस एनर्जी वगैरह कम होगा तो वहां पर मुझे एक्सप्लेन करने के लिए इनको यूज करना पड़ेगा। सो इट इज बेटर फॉर मी टू लेट यू नो what this terminology is. So from tomorrow I'll be starting with types of bonds, types of bonds। ठीक है, दो टाइप्स, पहला सबसे पहले तो है प्राइमरी बॉन्ड्स, प्राइमरी बॉन्ड्स, एंड देन सेकेंड विल बी सेकेंडरी बॉन्ड्स। प्राइमरी बॉन्ड्स के अंदर में हमारे पास दिस इज सेकेंडरी बॉन्ड्स, सेकेंडरी बॉन्ड्स। प्राइमरी बॉन्ड्स के अंदर में वी हैव प्राइमरी थ्री थिंग्स, तीन इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं इसके अंदर में। द फर्स्ट वन बीइंग आयनिक, आयोनिक और इलेक्ट्रोवैलेंट, इलेक्ट्रोवैलेंट bond, the second thing is covalent bond, and third thing is uh, there is something called metallic bonds, metallic bonds। ठीक है, so we'll see, I mean these three primary bonds actually form a type of triangle। Okay? One vertices is ionic, another one is metallic, and then the third one is covalent। ठीक है, तो ये चीजें हम यहाँ से शुरू करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट आयनिक बॉन्ड्स। छोटा है, 1-1.5 लेक्चर में, इसमें 3 से 4 लेक्चर जाएंगे। कोवैलेंट बॉन्ड की 4 अलग अलग थियरीज हैं, वी विल अंडरस्टैंड देम, द डिटेल्ड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पिक्चर एंड ऑल दैट थिंग्स। देन we will have to in between understand the concept of hybridization and concept of resonance। ठीक है, रेजोनेंस के बाद फिर ये कोवैलेंट खत्म होने के बाद इनके प्रॉपर्टीज वगैरह, एंड देन मेटालिक बॉन्ड्स इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू। इट विल डिराइव सम ऑफ द इंफॉर्मेशंस फ्रॉम रेजोनेंस। दोनों के होने के, रेजोनेंस और मेटालिक बॉन्डिंग दोनों के होने का फिनोमेना लगभग सेम होता है। these things we will do, then we will come into secondary bonding after studying their effects on different types of compounds, what is the best criteria or what type of atoms will be the best suitable thing to form each of them। तो ये सारी चीजें स्टडी करने के बाद then we will come into secondary bonding, and with all the descriptions of secondary bonding, यहाँ पे ही प्राइमरी हमको डायपोल्स वगैरह का यूसेस देखने के लिए मिलता है। यहाँ थोड़ा मिलेगा, यहाँ ज्यादा मिलता है, क्योंकि डायपोल मोमेंट एक्चुअली ये सेकेंडरी बॉन्डिंग जो होती है दैट इज डायपोल आयन, डायपोल इंटरेक्शन, ये सब लिखवाया था। तो ऐसे 5 कैटेगरीज होते हैं, आयन डायपोल, आयन इंड्यूस्ड डायपोल, इंड्यूस्ड डायपोल, देन डायपोल, डायपोल, then you have dipole, AND dipole, then AND dipole, AND dipole। ठीक है, सो ये 5 टाइप के होते हैं, इनको डिस्कस करेंगे, इनके इफेक्ट ऑन वेरियस कंपाउंड्स। तो वो डिस्कस करने के बाद, आई मीन दैट इज गोइंग टू बी द लास्ट थिंग इन दिस चैप्टर, एंड so we'll start about this will give you the entire picture or understanding of what type of
interaction exactly the atoms have with each other, and what is the after effect of those interactions between the atoms is. ठीक है? Now let us conclude our lecture over here. Bye for now. Have a nice day. Let's meet after 20 minutes.